الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کے حاجات کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترکیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا. بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں مخصوص حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں. وہ لوگ عبادت میں دکھاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بچا لیتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے والے معمولی سی چیز بھی مانگنے نہیں دیتے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. یہ تھی قاریہ عائشہ جنہوں نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی. اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت شعر کے ساتھ میں گزارش کروں گا سیرت فاطمہ سے کہ وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی سیرت فاطمہ. سرے محفل کرم اتنا، سرے محفل کرم اتنا، میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. فنا اتنی میں ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، فنا اتنی میں ہو جاؤں تیری ذات عالی میں. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا، سرے محفل کرم اتنا، میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتی ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتی ہوں. نہ جانے کون سی شے میں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا، سرے محفل کرم اتنا، میری سرکار ہو جائے. سبحان اللہ. بہت اچھی نعت پڑھی سیرت فاطمہ نے. بہت بہت شکریہ سیرت فاطمہ، آپ نے ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی. جی ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے پاروں کا خلاصہ. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ آج پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا تھا 16ویں پارے کا خلاصہ، آج میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمیں 17ویں پارے کا خلاصہ سنائیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وما अरसलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 17 रमज़ान मुबारक और 17वें पारे का खुलासा है। इसमें एक तो मौत का जिक्र किया गया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब भी किसी जनाजे में जाती हैं, जिस वक़्त भी जनाजे में जाती हैं तो खुतबा में से उलमा में से ये बहुत ज़्यादा आयत पढ़ी जाती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक हर ज़ी रूह ने मौत का ज़ायका चखना है। दो बातें हैं, एक होता है मर जाना, एक होता है मौत का ज़ायका चखना। बस मौत का ज़ायका चखना है। उस मौत के बाद अब नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस मरने वाले जो मर चुका है, जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं, जब वो मर जाता है उसको ये पता है किसने इसको कफन दिया, किसने इसको नहलाया, कौन इसको कांधों में लेके जा रहा है, कौन इसको कब्र में उतार रहा है। यानी ये सामने बात आ गई। उसको इस्तात नहीं है, ताकत नहीं है बोलने की, वो देख रहा है। उसका जो देखना है वो इतना है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको उसको कब्र में रख दिया जाता है और उसके ऊपर एक कई मन मट्टी जो है डाल दी जाती है। सही बुखारी की सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हम जूती की हमारी जो आवाज़ है वो भी मुद्दा सुनता है। अब वैसे हम यहाँ पर ये जो हमारे रूम्स हैं इस कॉलेज के, इसको अगर बंद कर दे जाए, हम बाहर चलें, आवाज़ नहीं जाएगी, मगर उसके कानों की इतनी मतलब ये कि एक सुनने की अल्लाह पाक ने उनको दी है समात, इतना सुनता है वो डेड बॉडी, जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं, अल्लाह पाक उसको इतनी ताकत देता है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है। कुलना या नार कूनी बारदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा कि ए आग जो है ये ठंडी हो जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। ये बहुत बड़ा लंबा वाक़या है, मैं इशारतन कर देना चाहता हूँ। इसी में एक जो है, जो हमें एक अल्लाह पाक ने रहमत बना के भेजा, इसी पारे में 17वें पारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए, जहान में आसमान साथ हैं, ये ज़मीन भी साथ, यानी आसमान और ज़मीन में जो शय है उसके लिए आप रहमत हैं। यूँ समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन यानी जो तमाम जहान का रब है। जहाँ जहाँ मेरे रब की रबूबियत है, वहाँ वहाँ मेरी मुस्तफ़ा सल्लम की रहमत है। सुभान अल्लाह। और इसके बाद यहाँ पर है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, और यहाँ पर जो है तमाम लोगों को खिताब किया गया है। एक मोमिनीन के लिए है, एक यहाँ पर तमाम लोगों के लिए। खबरदार अगाओ जाए लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ, कहीं ये ना हो वहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, डराने के बाद क़यामत भी कायम होनी है। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक जो है क़यामत का जो ज़ल्ज़ला होगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ी नहीं है। आप उस ज़ल्ज़ल से, उस क़यामत के ज़ल्ज़ल से डर जाओ, ये चीज़ इसमें है। और आखिर में बगैर आपके कहे हुए, क्योंकि वो मेरे ऊपर, मैंने उसको एक फ़र्ज़ समझ लिया है या वाजिब समझ लिया है, क्योंकि वो आज हमारे वो इसमें शामिल नहीं है, मगर मैं इस 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ। आज 17 रमज़ान मुबारक है। मैं बगैर आपसे ये कहे हुए, आपने मुझे नहीं कहा, लेकिन मेरा जो है अब दिल कर रहा है मैं बता दूं, 17 रमज़ान मुबारक को उम्मुल मोमिनीन, जहाँ इस वक्त गुंबद खदरा है, जहाँ इस वक्त गुंबद खदरा है, नबी अलैहिस्सलाम रौदतुम मिन रियादिल जन्नह है, रौदतुम मिन रियादिल जन्नत से भी ज़्यादा आला है, जहाँ मेरे मुस्तफ़ा सल्लम का रोज़ा अक़दस है। वो घर था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आज 17 रमज़ान मुबारक है, 17 रमज़ान मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल मुबारक है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मैंने बयान किया इस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हमने पारे के खुलासे में बहुत सी चीज़ें जानी। वक्त की कमी की वजह से डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पहलू जो पारे के हैं वो हमें नहीं बताए। इंशाल्लाह हम साथ साथ उनको लेकर चलेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है हदीस। कहूँगा आलमा नफीसा मनकास साहिबा से कि वो हमें हदीस बताएं फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से। जी नफीसा। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आकाए दो जहां नमदारे मदीना सुरुल बेसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। हर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो अर्श अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज बुलंद होती है कि इस जैसी खूबसूरत आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती हैं जो जन्नत के बुलंद मोहल्लात पर जाहिर होती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह ताला से मांग ले, हमारा उससे निकाह हो। फिर वो हूरें दरोगाए जन्नत हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम से पूछती हैं कि कैसी रात है, तो फिर दरोगाए जन्नत तलबिया यानी लब्बैक कहते हैं और कहते हैं कि ये माह रमजान की पहली रात है कि जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मद के रोजेदारों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस हदीस में रोजेदारों के लिए क्या इनाम है, क्या इनाम व इकराम है, किन किन चीज़ों से उन्हें नवाजा जाता है, इस बारे में बताया गया है कि रोजेदारों के लिए जब रमजान की पहली रात होती है, किसी ने भी रोजा रखा होता है, उसके लिए जन्नत पर हूरें आती हैं जन्नत के बुलंद महल्लात पर, और अल्लाह से कहती हैं कि है कोई जो हमें अल्लाह से मांग ले। तो रोजेदारों के सवाब का जिक्र किया गया है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा, आपने हमें हदीस बताई रमज़ान के हवाले से। अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब जो कि है सवाल और जवाब। मैं डॉक्टर साहब से आज दोबारा से सवाल करूंगा और वो हमें रोज़े के मसाइल के हवाले से जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रमज़ान मुबारक में बिला उज़र शरी रोज़ा ना रखने वाला और एलानिया खाने पीने वाला, उसके लिए क्या हुक्म है, उसके लिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक है कि इंसान वैसे रोज़ा नहीं रखता, एक है अलल ऐलान रोज़ा भी ना रखे और रोज़े की जो है वो बेअदबी और गुस्ताखी करे। यानी मुराद ये एक फ़र्ज़ है, रोज़ा जो है फ़र्ज़ है, एक फ़र्ज़ की बाकायदा तौर पे अलल ऐलान सरेआम जो है वो खाता है पीता है अलल ऐलान, उसके लिए शरअ हुक्म ये है कि उसको मना किया जाए। मना ना हो तो वक्त के हाकिम को चाहिए उसको कत्ल कर दे, क्योंकि उसने फ़र्ज़ को ठुकराया है। एक तो फ़र्ज़ को ठुकरा रहा है, एक जो है वो ठुकरा के फिर जो अलल ऐलान खा पी रहा है। ये है शरई हुक्म इसका। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इफ्तार का वक्त क्या है, मतलब कौन सा वक्त इफ्तार का होता है? इफ्तार का वक्त जब हमें मालूम है कि ये सूरज जो है ये गुरूब हो गया है, पूरी तरह से गुरूब हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो है इफ्तार का वक्त शुरू हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त हमें मालूम है कि हो गया है, उसके बाद थोड़ा सा अंधेरा बिछाने लग गया तो हम बैठे हुए हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। रोज़ा तो ठीक है, इसको मकरूह कहते हैं। यानी मुराद ये है कि आफ्ताब गुरूब हो गया है, पता भी है, कुछ लोग ऐसे देर से करते हैं, ठीक है, जानबूझ के। एक तो वैसे इंसान सफर में होता है, वो अलग बात है, एक जान के ऐसे उस रूटीन बनाई हुई है। रोज़ा ठीक है हो जाएगा, मगर एक मकरूह जिसको कहते हैं सवाब में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, जिसको खिलाफ सुन्नत कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। मेरा जो अगला सवाल है वो बहुत से लोगों को बहुत से लोगों को फ़ायदा भी देगा और बहुत से लोग दूसरों से उम्मीद भी करेंगे। इफ्तार कराने का क्या सवाब है? इफ्तारी कराने का क्या सवाब है? इफ्तारी कराने का बहुत बड़ा सवाब है, इंसान के बहुत बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान जो है रोज़ा इफ्तार करता है, कोई भी एनिमल, एक इंसान ने रोज़ा इफ्तार करा दिया, तो इस तरह है कि जितना उस रोज़ा रखने वालों को सवाब मिलेगा उतना उस रोज़ा इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। सुभान अल्लाह। पहली बात। दूसरी बात ये है, पैसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, एक पानी से पिला दे तो भी यही है, खजूर दे दे तो भी यही है, पेट भर के खिला पिला दे तो भी सवाब यही है, ना उसके सवाब में कमी होगी ना उसके सवाब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है मैं तवक्को करता हूँ कि नाजरीन हमें इफ्तारी पे बुलाएंगे और इसके साथ हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुँचता है। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर साहब से कि वो दुआ करवाएं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे।
सवाल करना चाहूँगा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं रोज़े की हालत में बाम, ये विक्स बाम जो हम सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता है? न तेल लगाने से रोज़ा टूटेगा, न फासिद होगा, न उसमें कोई खराबी आएगी, ठीक। और न ही बाम लगाने से कोई रोज़ा टूटेगा, न फासिद आएगा। ठीक अक्सर ऐसे जहल, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं सुनता हूँ अक्सर भी, तो बहुत बड़े सख्त जो है यस्सिरू, आसानी पैदा करो मेरी उम्मत के लिए, नबी ने फरमाना है। इन्होंने बहुत सर बड़ी जो है ना आगे मसाइल बढ़ा दिए हैं। ना बाम से रोज़ा टूटता है, ना तेल लगाने से रोज़ा टूटता ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया है। डॉक्टर साहब। और इस तरह मेरे जहन में वैसे बात याद आ गई है, सवाल तो नहीं किया, एक से मुझे भी पूछते हैं स्प्रे यानी ठीक है। लगाने से, यानी कि सेंट लगाते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर साहब से वो दुआ करवाएं, और इसी के साथ हम अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन। हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े माफ़ी अता फरमा, माफ़ी अता फरमा, हमारे सबका गुनाहों की माफ़ी अता फरमा या रब्बुल आलमीन, आगे गुनाह करने से महफूज़ फरमा या रब्बुल आलमीन। अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा, इताअत नसीब फरमा, फरमाबरदारी नसीब फरमा या रब्बुल आलमीन। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको उनके वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा या रब्बुल आलमीन। सनराइज़ मीडिया तमाम टीम को, डायरेक्टर्स को और प्रिंसिपल्स को या रब्बुल आलमीन, और तमाम स्टाफ को ज़िंदगी तरक्की अता फरमा, बिलख़ुसूस तलबा तलबात को कामयाबी कमरा नसीब फरमा और दीन से लगाव अता फरमा या रब्बुल आलमीन। दीन से मोहब्बत नसीब फरमा, हम सबको दीन से मोहब्बत अता फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा। जो सुन रहे हैं, जो आमीन कह रहे हैं हमारे साथ, रब्बुल आलमीन सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले प्रोग्राम में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।